Good morning. Today I am going to share with you about the God's plan for the ages. Of the first part of the God's plan for the ages. Uh, Prophetic significance. We have the prophetic word made more sure, to which you do well to pay attention as a lamp shining in the dark place. 2 Peter chapter 1 verse 19. In Urdu I am going to read for you. پہلا حصہ نبوت کی اہمیت. ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ موت پہ ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ وہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے. دوسرا پطرس کا خط پہلے باب کی 19ویں آیت جو ہے وہ یہ ہے. تو نبوت کی اہمیت جو ہے وہ یہ ہے. کیا نبوت محض آسمانی دخل اندازی ہے؟ نبوت اگرچہ بائبل مقدس کے 2/3 حصے کو محیط کیے ہوئے ہے، تاہم ان لوگوں نے اس کی قدر و قیمت اور اہمیت کو کم کر دیا ہے جو اس کی اہمیت سے بہرہ نہیں. اس وجہ سے وہ لوگوں کی آنکھوں کو یسوع پر سے ہٹا دینے کا باعث بن جاتے ہیں. مکاشفہ 19واں باب اس کی 10ویں آیت میں ہم یوں پڑھتے ہیں: یسوع کی گواہی نبوت کی روح ہے. اس طرح اگر نبوت پیشن گوئی یا الہام کو درستی سے سکھایا جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ کسی فرد کی توجہ یسوع مسیح سے ہٹ کر جو ہے کسی اور طرح کی سمت میں جو ہے وہ چلی جائے. در حقیقت درست تعلیم یسوع کی مرکزیت پر زور دیتی ہے. بائبل مقدس یہ فرماتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا کے کلام کا مرکز ہے. تو کیا نبوت عملی اقدام ہے؟ ذرا غور کریں کہ نئے عہد نامے کے سب لکھنے والے اس بات پر زور دیتے ہیں کہ نبوت کی تعلیم پاکیزہ زندگی بسر کرنے کی تحریک دیتی ہے. ونڈرفل. What a great sentence is this. تو اس سے بڑھ کر اور کون سی چیز عملی اقدام کی حامل ہوگی؟ نبوت کو درستی سے سکھایا جائے تو پھر اسے خبتی یا اپنے تقیہ خیال میں لانے کی کوئی ضرورت نہیں، اور نہ ہی متشدد اور متعصب لوگوں کے لیے میدان کھیل ہو سکتی ہے. اس کے برعکس تو یہ شاگردوں کے لیے ضروری سرسبز و شاداب چراگاہ ہوگی. ہلیلویا. اسباب مطالعہ. نمبر 1، تکمیل شدہ نبوت بائبل مقدس الہام شدہ کلام خدا کا کلام ہونے کا بہترین ثبوت ہے. جو نبوتیں تکمیل ہو چکی ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ خدا کا کلام ہے. صدیوں پہلے بائبل میں کی گئی سینکڑوں پیشن گوئیوں شہروں اور اقوام اور افراد کے متعلق جو تھیں وہ صدیوں کے بعد پوری ہو رہی ہیں. او ہلیلویا. یرمیہ نبی نے بابل کی 70 سالہ اسیری کی پیشن گوئی کی تھی. یرمیہ 25ویں باب کی 11ویں آیت سے لے کر جو ہے 17ویں آیت تک. یسایہ نبی نے بھی نبوت کی کہ بنی اسرائیل شاہ خورس کے حکم کے باعث وطن واپس لوٹیں گے.
अज़रा पहले बाब की पहली आयत, यसाया 44 बाब की 28वीं आयत जो है, दानियल ने ये 4 गैर कौम सल्तनतों का हाल ठीक ठीक जो है वो देखा। दानियल 7वां बाब और 8वां बाब। बाबल की तबाही का हाल बहुत से इब्रानी नबियों ने बयान किया, जैसे यसाया 13 बाब। नए अहदनामे में यीशु अल मसीह ने यरूशलेम की तबाही के मुतल्लिक पेशनगोई की और जो उसके आसमान पर जाने के 40 साल बाद ही पूरी हो गई। नंबर 2, नबुव्वत यीशु मसीह की मुसद्दक है। नबुव्वत बाइबल खुदावन यीशु मसीह की मुसद्दक यानी खुदावन यीशु मसीह की तस्दीक करती है। यीशु की पहली आमद के मुतालिक बाइबल मुक़द्दस में 300 से ज़ायद पेशनगोइयाँ पाई जाती हैं, प्रेज़ गॉड, जो सब की सब पूरी हो चुकी हैं। यीशु मसीह की ज़िंदगी के हर पहलू के लिए, जैसे उसकी जाए पैदाइश, उसकी फितरत, माहियत, उसकी खिदमत की खूबी और कैफियत, उसके मकसद हयात और मौत की तकलीफ़, इन सब के मुतल्लिक़ पहली ही से पेशनगोइयाँ की गई थीं, जिनका रिकॉर्ड बाइबल मुक़द्दस में मौजूद है। ज़बूर 22:16 आयत में दर्ज पेशनगोई ज़ेरे गौर है, जिसमें मसीह के हाथों पाँव के छेदे जाने की पेशनगोई की गई है। ये पेशनगोई मसीह यीशु में दुनिया के आने से 1000 साल पहले की गई। ये पेशनगोई हज़रत दाऊद ने अपने ज़बूर में कलमबंद की है। ये पेशनगोई इसलिए भी बड़ी अहम है कि इस पेशनगोई के 7 साल बाद मौत की सज़ा के लिए सलीब की ईजाद हुई, यानी सलीब दिए जाने का रवाज पहले नहीं था, लेकिन खुदा ने अपने नबी हज़रत दाऊद के ज़रिए अपने मसीह के सलीब दिए जाने को नबुव्वत के ज़रिए से पहले ही बता दिया। किसी शख्स की ज़िंदगी में बहुत सी पेशनगोइयों का हर्फ बहर बयान शुदा मतन के ऐन मुताबिक पूरा होना महज इत्तफाक ही नहीं बल्कि फ़ौकुल फितरत हस्ती उसे साबित करती है। इस मकसद को पूरा करता है कि मसीह यीशु वही है जो खुद उसने अपने मतलब खुद कहा था कि वो इब्ने खुदा है। नंबर 3, नबुव्वत मुस्तकबिल को ज़ाहिर करने वाली है, रिवीलर ऑफ द फ्यूचर। पेशनगोई हमें बताती है कि खुदा चाहता है कि हम बाद मुस्तकबिल में होने वाली बातों को जाने। इस्तिस्ना 29 बाब की 29वीं आयत भी, 29वां बाब 29वीं आयत में, और आमूस की किताब जो है उसके 3 बाब की 7वीं आयत में भी ये बात दर्ज है। ये खुदा की मर्जी हरगिज़ नहीं कि हम मुस्तकबिल के मुतल्लिक सब कुछ जानें। अगर हमारे पास कोई कवी उम्मीद है तो फिर खुदा चाहता है कि हम मुस्तकबिल में वक़ू होने वाली चंद बातों को ज़रूर जानें। लिहाजा पेशनगोई और नबुव्वत हमें इस अमर का यकीन दिलाती है कि खुदावंद यीशु अल मसीह वापस आ रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जीसस इज कमिंग वेरी सून। ओह हालेलुया। और अगर हमें भी अपने साथ जिंदा करके और वो आकर अपने साथ जिंदा करके अपने साथ जो है वो ले जाएगा, ताकि हम हमेशा खुदा बाप के साथ उसके साथ रहें। इस सबब से पतरस रसूल नबुव्वत को चिराग के साथ मुंसलिक कर देता है कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है, जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है।
दूसरा पतरस पहले बाब की 19वीं आयत। पौलुस रसूल पहले करंथियों के दूसरे बाब में इस नुक्ते को इस तरह वाज़े करता है, इसकी वजाहत जो है वो इस तरह करते हैं, जो चीज़ ना आँखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी। Praise to Jesus, हालेलुया। लेकिन अगली आयत मुक़द्दसा में यूं फरमाया गया है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीले से ज़ाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातें बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। पहला करंथियों दूसरे बाब की 9 और 10वीं आयत है। खुदा का शुक्र, खुदा की सताइश और खुदा की हम्द करते हैं कि वो हमारा खुदा है, कि वो हम पर जो है वो ऐसी बातें ज़ाहिर करता है। लेकिन ये बात है, चौथी बात जो है वो ये है, नबुव्वत बराए बिशारत अंजील महरक और आलाए बिशारत है। तो मतलब ये है कि नबुव्वत जो है वो अंजील मुक़द्दस की बिशारत के लिए एक मुतहर्रक शय है। नबुव्वत को बिशारत अंजील के लिए मुअस्सर आला कार जो है वो के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। जिस तरह कि हबशी खोजे और मुबशर की कहानी से अयां है, जिसका जिक्र माल के 8वें बाब की 26वीं आयत से शुरू होता है। फिलिप ने ऐसी तालीम देने के लिए यीशु को वो बर्रा, हालेलुया, वो बर्रा है जो दुनिया के गुनाहों के लिए ज़बह हुआ। ईसाया की किताब उसके 53 बाब को इस्तेमाल वो करता है, जिसमें दुख उठाने वाले अजीम बर्रे का जिक्र है। पतरस और मत्ती दोनों रसूल जो हैं पेशनगोई की बुनियादी और बशारती हथियार के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। पतरस और मत्ती दोनों इन पेशनगोइयों को अपने वाज़ों में इस्तेमाल करते रहे हैं, और ये पेशनगोइयाँ मसीह यीशु की ज़िंदगी में पूरी हो चुकी हैं। पतरस रसूल ने पेंतिकोस्त के दिन अपने पहले अंजीली वाज में इसकी तकमील शुदा पेशनगोई को तवातर से इस्तेमाल किया, मतवातर वो इस्तेमाल करता रहा है। अमाल 2 बाब की 14 आयत से 39वीं आयत तक आप इसे पढ़ें और देख लें। इब्रानी सहीफ़ों के मुताबिक यीशु मसलूब हुआ और मुर्दों में से जी उठा। बाद पतरस रसूल ने एक बहुत बड़े सबूत के तौर पर एक पेशनगोई का हवाला दिया जो पूरी हो चुकी थी, कि यीशु फिल हकीकत खुदा का बेटा था। दूसरा पतरस पहले बाब की 16 से 19वीं आयत तक है। खुदावन जो है वो हमारे साथ जो है वो अपने कलाम के वसीले से जो है वो बात कर रहा है। तो आज का जो आपके सामने जो कुछ मैंने शेयर किया है वो ये है कि पार्ट 1 जो है, और विद द प्रोफेटिक सिग्निफिकेंस वी हैव द प्रोफेटिक वर्ड मेड मोर श्योर, to which you do well to attention as a lamp of shining in a dark place। तो ये है कि खुदावन कि ये कहीं कलाम पाक में ये है कि नबुव्वत की अहमियत जो है वो सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रोफेटिक वर्ड। हमारे पास नबियों का वो खुदा का कलाम है जो ज़्यादा मोतबर ठहरा। तुम अच्छा करते हो जो उस पर गौर करते हो कि वो एक चिराग है जो अंधेरी जगह में रोशनी बख्शता है। दूसरा पतरस पहले बाब की 19वीं आयत में है। आज के लिए इतना ही, खुदावन ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। गॉड ब्लेस यू एंड मारानाथा।